Good afternoon to all of you. If no one has joined me now, so I'm just going to start my lecture. One scene. Go to our YouTube channel, and there you can just invite and you can watch my politics. So today we will discuss LR parsing. Before that, we have discussed top-down parsing. English we have discussed descent parsing and LL1 parsing. Then we have been discussed arbitrary precedence parsing. Now after that, we have discussed LR parsing. LR parsing is one type of pattern parsing. Parse the large class of terms. In LR parsing, first L stands for left to right ramming cell. Second R, or we can say first R, stands for constructing a right node derivation. Because the bottom parsing, type of right node derivation. So first L, or we can say L means left right spanning of input, whatever is given, and R is right node derivation. So K, suppose it's LRK, then K is the number of input symbols of the look ahead used to make number of parsing. So जितना सिंबल हमको आगे देख कर हमने अपना डिसीजन लेना है. अगर से K की वैल्यू 1 है तो पार्सर हैज टू सी ओनली वन सिंबल लुक अहेड. और 2 है दो सिंबल चेक करना है, डिसीजन लेना है, उसको मूव करना है या रिड्यूस करना है. तो LR parsing is divided into 4 parts: LR0 parsing, SLR parsing, ELR parsing, and LAR. So we can see LR0, SLR1, LALR1, and CL. We will study all these 4 types of LR parsing in detail. First one is the LR parsing, or LR algorithm. The LR algorithm requires stack, input, and parsing. तो LR पार्सल का जो कॉमन वर्किंग मॉडल है वो सबके लिए सेम हो. LR0 के लिए भी SLR1, LALR1 और LR1. LR algorithm is common to all of these 4 parcels, but there is a little bit difference. We will see this difference. So today you can see input buffer, stack, LR parsing, and LR parsing. So this is annotation. Input buffer, stack, and parser. These things remain same for all types of LR parser. Only the changes we can observe in all these 4 types of parser is LR parser. तो पार्सिंग टेबल चेंज होती है. LR 0 के लिए कुछ और, SLR 1 के लिए कुछ और हो जाएगी, ELR 1 के लिए कुछ और LALR 1. बट stack, input buffer, and LR parser, it contains input is given as T. This is the algorithm, and this is L. So go to the next point. LR parser are also known as LRK parser. In type of LR parsing, input, output, and stack are same, but the parsing table is different. Yes, I told you earlier, input, output, and stacks are same, but the parsing table is different. Input buffer is used to indicate end of input, and it contains the string which is to be parsed, and this string is followed by dollar. Means suppose this string W is equal to A. So this is stored in the dollar symbol. A stack is used to contain a sequence of grammar symbol with a dollar at the bottom of it. So at bottom dollar is there, and then grammar symbol. So the grammar का symbol होगा, that is parsing table is 2-dimensional array. It contains 2 parts: action part and go to part, that we will see later. So these are the structure of LR: stack, input, parser, and parser. Now first one,
LR1 parcel. Actually, not LR1, but it is LR0 parcel. Okay. So various type of steps involved in LR0 parcel. For the given input string, we let me clear an question. For a given input string, we write a context free grammar, and I hope all of you know what is the meaning of context free grammar. So check the ambiguity of that. If the grammar is ambiguous, so we cannot draw or we cannot design a AR parser. So grammar should be free from ambiguity, should be an ambiguity. Add argument protection in the given block. Argument protection means suppose if A, A to A. So argument protection means we have to use one more protection at the starting. Say it is S dash, and then you apply. This is called argument protection because we have added one more protection, and S, that is the starting symbol, comes to the right hand side, and this is the new. Create canonical collection of LR0 items. So what is the meaning of LR0 item? A canonical collection of LR0 items you see in the commit line. After creating this LR0 item, we have to draw data deterministic finite data. Then after that, we have to construct LR0 or so. Okay. So these are the steps that involve in designing LR0 part. Okay. First, input string grammar of a complexity grammar होगा, then argument protection, then write canonical LR0 item, and then clear pay. So go to the next one. Augmented grammar G dash will be generated if we add one more protection in the game. तो मैंने platform वाले में आपको it helps the parser to identify when to stop the parsing and announce the acceptance of the input. तो आपने ऑटोमेटा में कहा था कि string can be accepted or rejected. If we parse the string and it is the final state, then string should be accepted, otherwise it is rejected. So we use augmented grammar G dash. For example, given grammar S to AA, then A to small a capital S, and then B, then the augment grammar G dash can be represented by we add one more state S dash, that is S, start symbol हमने नया ले लिया है, and then use annotation S dash to S, and then S to AA, and then A to AA dash. So this is the meaning of augmented grammar. हमने क्या किया, इसमें से एक नया ग्रामर सिंबल दिया और उसके बाद हमने इसको सारी चीजें करें. तो सेम, all things are same, only this production, this extra production is added. That's why it's called augmented grammar. This is given. This grammar is given. This is G. Then augmented grammar G dash is represented by this. This all we call it G dash. All augmented grammar. Now go to the next one. तो हमने ऊपर बताया था आपको कि स्टेप क्या था, कैनोनिकल कवर ऑफ LR0 है. तो ये हमारे स्टेप है. तो पहले हमने क्या बनाया, आर्गुमेंट ग्रामर. अभी देखा आपने कैसे हमने इसको आर्गुमेंट ग्रामर बना दिए, ग्रामर को आर्गुमेंट ग्रामर. देन नेक्स्ट वन इज क्रिएट कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आई. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आई. हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0. तो an LR0 item is a production G with dot at some position on the right side of the production. तो प्रोडक्शन में आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट साइड होती है. तो राइट हैंड साइड में हम क्या यूज करेंगे, डॉट एग्जांपल. तो it is useful to indicate that how much of the input has been scanned up to given point in the process of parsing. Means let me use annotation. Suppose S2 dot A means this is the dot. तो लेफ्ट हैंड साइड, डॉट से पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कुछ नहीं.
So nothing is scanned. And if I write like this, S2 A dot A, it means we have already scanned this non-terminal A and we are going to scan this second A. तो डॉट का मतलब ये लिखा हुआ है हाउ मच ऑफ द इनपुट हैज बीन स्कैन्ड अप बिकॉज़ गिवन पॉइंट तो कितना इन्फॉर्मेशन स्कैन किया अगर हमने इसको ऐसे कर दिया S2A dot means we have scanned all the inputs because there is nothing or no more symbol on the right hand side of the dot. So this is called finalization because all input symbol has been scanned because dot के right side में कुछ है ही नहीं. So in the LR0 we place the reduced node in the entire book. Example, suppose S2AA, A2 small a capital A and B. Then you have to write first augmented grammar. This is the augmented grammar. S dash to S, then remaining things are same. Now add augmented production and insert dot symbol at the first position of the every production inch. तो क्या हो जाएगा S2 dot S. तो अब यहाँ देखिए क्या है now S2 dot S. Now because dot के बाद क्या है नॉन टर्मिनल तो जब डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है then we replace all these production of नॉन टर्मिनल प्रोडक्शन क्या हमारे पास है इससे क्या है हमारे पास डॉट ए नाउ अगेन डॉट के बाद क्या आ गया नॉन टर्मिनल then we write all the production of a with dot at the beginning. ए में क्या क्या हमारे पास था ए से ए डॉट ए बी पी है यहाँ क्या आ जाएगा ए एंड देन डॉट. नाउ आफ्टर दिस डॉट के बाद क्या है नॉन टर्मिनल तो हम इसका भी कुछ नहीं बिकॉज नॉन टर्मिनल कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर सिंबल. दिस इज आल्सो नॉन टर्मिनल. So this is the meaning of this sentence. Add argument production and then insert s dash insert dot symbol at the first position. तो पहले हमने s dash का डॉट s किया और सपोज अगर से एक की जगह यहाँ क्या होता b होता तो यहाँ पे a स्मॉल a होता तो क्या होता यहाँ पे s2 dot s and then because s is non terminal so again we have to replace s. इसमें क्या आ जाएगा डॉट ए और इसके बाद क्या है हमारे पास डॉट के बाद टर्मिनल आ गया नाउ नो नीड टू राइट एनी. अगर से ग्रामर हमारी ऐसी हो चुकी हो तो ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा आप लोग कि स्टार्टिंग में सारे प्रोडक्शन यहाँ पे लिखने नहीं होते. कब लिखेंगे जब डॉट के बाद क्या आ जाए नॉन टर्मिनल आ जाए वेरिएबल आ जाए तब लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे डॉट के बाद वेरिएबल आया देन वी हैव टू राइट एस प्रोडक्शन रिप्लेस एस प्रोडक्शन विद ए देन इसके बाद डॉट के बाद ए आया देन ए कम है. अब यहाँ पे अगर से ए की जगह स्मॉल ए होता तो हम बस यही लिखते अरे प्रोडक्शन नहीं. ठीक है तो आई नॉट स्टेट तो हम क्या करेंगे अब हम इसका आई नॉट स्टेट निकालेंगे. तो ऐड आर्गुमेंट प्रोडक्शन टू आई नॉट स्टेट एंड कंप्यूट द क्लोजर. तो क्लोजर निकालेंगे हम यहाँ तो आई नॉट इक्वल टू क्लोजर ऑफ एस डैश टू डॉट एस. तो बिकॉज डॉट एस क्या वेरिएबल है देन इट इज रिप्लेस बाय डॉट ए अगेन डॉट के बाद वेरिएबल है तो ए रिप्लेस बाय डिस्क्रिप्शन. तो दिस इज ऑल आवर आई नॉट. दिस इज आई नॉट और आई नॉट. ओके आफ्टर दैट अब देखिए इसको हम ऐसे करते हैं यहाँ पे ना हम बनाते यही बनाते. तो आई नॉट मतलब क्या है हमारा एक डैश डॉट देन s2 dot a and then again we have non terminal after the dot immediate right non terminal है then dot a capital A dot. This is called I naught state. Now we perform go to operation. तो s ये हमारा डॉट बाद क्या s है ना तो s में अगर से जाएगा तो क्या आ जाएगा अगर s मूव होगा यहाँ आ जाएगा s डॉट तो वी हैव टू जस्ट शिफ्ट डॉट टू वन पोजीशन राइट. तो नाउ डॉट से क्या बन जाएगा ये
अब डॉट के बाद कुछ नहीं है तो हम यहीं स्टॉप कर जाएंगे, इट इज फाइनलाइज। नाउ स्मॉल, अब डॉट के बाद कैपिटल है, कैपिटल ए पे क्या आएगा, कैपिटल ए पे देखा जाए तो डॉट हमारा यहाँ पर है, और दिस डॉट मूव टू जस्ट वन पोजीशन राइट, तो इट बिकम्स एस ए डॉट ए, बिकॉज अब डॉट के बाद क्या है, नॉन टर्मिनल, देन अगेन सेम पॉलिसी, हमको नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, ए प्रोडक्ट, ए में क्या है, ए पी यहाँ पे आ जाएगा ए डॉट ए ए डॉट, अब मान लो डॉट के बाद ए है, स्मॉल ए, स्मॉल ए में क्या होगा, स्मॉल ए से डॉट कहाँ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा, सॉरी नॉट ए है हमारा, ए टू हमारा आई वन, दिस वन इज आई टू। नाउ ए टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ए से जाएंगे तो ए डॉट जस्ट कम वन राइट, ए डॉट ए, एंड देन डॉट बी की जगह क्या जाएगा, बी डॉट, दैट्स कॉल्ड आई थ्री। अब बी से क्या हो जाएगा, से कर देंगे हम तो ए टू, और यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ हो जाएगा बी डॉट। अब देखिए डॉट के बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट इज अवर फाइनल आइटम, दिस इज, ये सब क्या है, दिस इज एल आर जीरो आइटम, ये क्या है, एल आर जीरो आइटम निकाल, ये भी एल आर जीरो आइटम है, ये भी सब सब एल आर जीरो आइटम। नाउ आफ्टर दैट अब इसके आगे कुछ नहीं, तो स्टॉप पर अब आइटम में देखेंगे क्या है, डॉट के बाद ए है, क्या क्या करेंगे, ए पे फिल लेंगे, क्या हो जाएगा, ये एस टू ए ए डॉट, ओके, डॉट के बाद कुछ नहीं, स्टॉप कर जाएंगे, देन अब यहाँ पे एक करेंगे तो ए टू ए डॉट ए आ जाएगा। अभी यहाँ पे जब डॉट ए आया है तो यहाँ पे क्या आएगा, सारा सारा ए का प्रोडक्शन आ जाएगा, डॉट ए मतलब क्या, सारा प्रोडक्शन लिखना पड़ेगा हमको एक नॉन टर्मिनल, तो इसका मतलब ए, यहाँ पे डॉट ए डॉट, अब जब हम यहाँ पे लिखा ए, नाउ अब कैपिटल ए पे ये आ गया, देन स्मॉल ए पे क्या होगा, तो स्मॉल ए पे करेंगे तो हमारा ये पूछ आ जाएगा, सेम है आई थी, क्यों, क्योंकि आप ए पे लेंगे तो क्या होगा, ए डॉट यहाँ पे आ जाएगा, तो ए डॉट ए होगा, एंड देन अगेन ए को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट, नाउ स्मॉल बी पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है स्मॉल, तो ए टू बी डॉट। नाउ अब देखिए यहाँ पे फाइनल आइटम है, अब यहाँ पे क्या, यहाँ फाइनल आइटम नहीं है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे ए पे आएंगे, स्मॉल ए करेंगे, क्या हो जाएगा, ए टू ए ए डॉट, अब डॉट पे फाइनल कोई सिंबल नहीं है, ये अपना फाइनल आइटम है, एंड देन यहाँ से एक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट ए, ये सेम सेम पे आ जाएगा, और ये करेंगे तो यहाँ पे, तो आई नॉट आई वन आई टू, लिख चुका हूँ, आई टू आई थ्री आई फोर आई फाइव एंड आई, तो 6 स्टेट बन गए हमारे पास, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑल दीज थिंग इज कॉल्ड एल आर जीरो आइटम, एल आर जीरो कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ एल आर जीरो आइटम, ऊपर लिखा हुआ है, ओके, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ, इसे हम कैसे, अब इसके लिए हम क्या, दिस ये हमारा स्टेप क्या था, ये देखिए यहाँ पे अगर हम आए, क्रिएट, क्या था हमारा, क्रिएट कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ आई आर एल आर जीरो आइटम, ये हमने क्रिएट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, डीएफडी ड्रॉ करेंगे, ये हमारा डीएफडी हो गया, ये क्या है, डीएफडी है, नेक्स्ट क्या है, पार्सिंग टेबल, तो नाउ वी एम गोइंग टू डिजाइन और ड्रॉ पार्सिंग टेबल, तो कैसे करेंगे हम देखा, इन सब चीजों को हमने वर्ड्स में लिख दिया हुआ, just go through this PPT and watch my lecture, recorded lecture, and you can understand how we can compute I naught I1, तो I naught स्टेट क्या क्या है हमारे, जैसे I1 स्टेट कैसे आया ये मैंने बताया, I2 कैसे आया ये भी मैंने बताया अभी आपको, देन I3 I4 I5, ठीक है, तो दिस इज I,
तो दिस इज स्टेट, नाउ दिस डीएफए मैंने अभी ड्रॉ किया था, तो आई नॉट से पे गए तो कैसे है हमारे पास I1, देन यहाँ पे देखा आपने कि हम सेम स्टेट पे आ रहे थे, यहाँ लूप चल रहा था, सेम थिंग इज हियर, I0 I1, तो हमने क्रिएट डीएफए हमारा, ये मैंने देखो आपको बना के दिखाया कैसे बनाया। ओके, नाउ पार्सन टेबल कैसे बनेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पार्सिंग टेबल तो हमने बताया था, सिर्फ पार्सिंग टेबल के तो चेंजेस होगा और कहीं चेंजेस नहीं होगा। तो टी LR0 पार्सर एंड TLR1 पार्सर, इसमें क्या यहाँ तक स्टेप सेम रहेगा, इन दोनों में जहाँ तक स्टेप सेम रहेगा, चेंजेस कहाँ आएगा, पार्सिंग टेबल। तो फर्स्ट वी ड्रॉ द पार्सिंग टेबल ऑफ LR0 पार्सर, स्टेट इज गोइंग टू सम अदर स्टेट और टर्मिनल स्टेट इट ट्रांसफॉर्म टू शिफ्ट में। अब ये कैसे करेंगे टेबल, अगर से स्टेट कोई अदर स्टेट पे जा रही है, कहाँ पर, किसको कंज्यूम करते हुए, टर्मिनल को करते हुए, तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट में। ठीक है, अगर से वेरिएबल को कंज्यूम कर रही है तो गो टू मूव, और अगर से फाइनल आइटम है यानी उसके डॉट क्या है, राइट मोस्ट साइड में, देन रिड्यूस ऑपरेशन। ये अब देखिए यहाँ पे क्या था हमारे पास, I0, अब I0 से A पे कहाँ जा रहे थे, अब देखिए पार्सिंग टेबल हैज 2, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स, ये क्या हमारे पास, इसमें इज नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ स्टेट, तो I0 to I6 दिस इज स्टेट एंड इट हैज 2 कॉलम एक्शन एक्शन स्मॉल ए एंड काउंटर में क्या है, ए है और एस। तो अब देखेंगे, देखिए अगर से हमारा I0, तो I0 से ए पे कहाँ गया, देखिए I0 से ए पे तो गया हमारा, I0 से स्मॉल ए, तो स्मॉल ए पे क्या आया है, I0 से स्मॉल ए पे क्या आया, I3 मीन शिफ्ट मूव, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, अगर से हमारा टर्मिनल, तो स्मॉल ए क्या टर्मिनल है, क्या होगा, शिफ्ट मूव, शिफ्ट मतलब S3, एस स्टैंड फॉर शिफ्ट एंड 3 मतलब 3 स्टेट पे गया, तो I0 से एक सिंबल कंज्यूम करने के बाद जो हमारा डीएफए तब वो कहाँ गया, स्टेट 3 पे गया, तो 3 मीन्स स्टेट 3, 3 मीन्स क्या है, I3 एंड एस स्टैंड फॉर शिफ्ट बिकॉज टर्मिनल, I0 से बी पे क्या कहाँ गया होगा, शिफ्ट 4 पे। अब नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन दिस डीएफए कंज्यूम वेरिएबल, क्या होगा, गो टू मूव, तो क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो अगेन हम आते हैं डीएफए, अब देखिए डीएफए क्या है, I0 से ए पे, तो ए पे कहाँ है हमारा, दिस वन इज ए, ये हमारा ए, कहाँ कहाँ गया है, I2, तो I2 मतलब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 2 लिखेंगे, है ना, यानी कि क्या लिखा होता है, जब हम अगर से काउंटर में लाएगा तो काउंटर में लाएगा तो हम क्या करेंगे, गो टू मूव पे आ जाएगा, तो गो टू मूव पे क्या होगा, 2, बिकॉज इट इज गो टू I2, तो 2 आ गया, और एस से कहाँ पे आया था, एस से गया था 1 पे, तो क्या आ जाएगा, 1, तो एस का मतलब है शिफ्ट, और यहाँ पे हमने कोई नंबर नहीं दिया है ना, ऐसा नहीं कि हमने G2 नहीं लिखा, हमने सिर्फ 2 1 लिख दिया, ठीक। अब I1 पे आते हैं, देख तो ऐसे ऐसे सारा हो गया, अब देखिए यहाँ पे आते हैं रिड्यूस, तो फाइनल आइटम, तो फाइनल आइटम कहाँ है, देखिए ग्राफ पे आते हैं, डीएफए पे आते हैं, तो फाइनल आइटम हमारा यहाँ पे है, ये हमारा फाइनल आइटम है, और ये फाइनल आइटम, फाइनल आइटम, तो फाइनल आइटम मतलब क्या होता है, डॉट एट द राइट मोस्ट साइड, तो यहाँ पे क्या होगा, तो जहां जहां फाइनल आइटम आया है वहां क्या करेंगे, I1 I4 I5 I7 1 4 5 6, यानी R1 R4 R5 R6, तो एस, तो I0 से एस पे आएंगे, I0 से, अब देखिए यहाँ पे आए I4, तो स्टेट कंटेन फाइनल स्टेट, तो I4 कंटेन फाइनल स्टेट, यहाँ क्या आ जाएगा, 3 3 3, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, लेट मी यूज
आउट दिस ड्राइंग, गेट बैक एक ग्रामर एस जय एस टू इसको हमने नंबर कर दिया 1, नंबरिंग कर दी 2, कर दी 3। तो अब देखिए I4 क्या है हमारा, I4 कंटेनिंग फाइनल आइटम। तो I4 कंटेनिंग फाइनल आइटम तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए I4 कंटेनिंग फाइनल आइटम, I4 कंटेनिंग फाइनल में क्या ए टू पी डॉट में क्या है, यहाँ पे 3 है ना, फिर यहाँ पे क्या आ गया I3। तो जहाँ I3 कहाँ पे आ जाएगा, ये सारे रो में आ जाएगा, एक भी R3 आ जाएगा, इसको भी आएगा। I5 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 में कौन सा प्रोडक्शन यूज हुआ देख सकते हैं यहाँ पर, I5 में यूज हुआ है S2AA एंड A डॉट क्या है हमारा 2 है। जब यहाँ पे क्या आ जाएगा I5 करस्पॉन्डिंग क्या क्या आ जाएगा, सारा हमारा 2 आ जाएगा। तो 2 R2 क्या गया, ठीक है। एंड देन I6 में क्या है R2 तो R2, यहाँ पे क्या है I6 में क्या है हमारा सब R2 है तो R2, और I5 में क्या था 1 था तो 1 1 1 आ गया, ठीक है। तो I5 में सब जगह 1 1 आ गया। अब आप कहेंगे सर इसका क्या होगा, ये भी तो हमारा फाइनल आइटम है इस पर। ये देखिए यहाँ पे क्या है स्टार्टिंग सिंबल, तो स्टार्टिंग सिंबल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग सिंबल के हिसाब के बाद क्या है, कोई सिंबल नहीं हमारे पास, एक्सेप्ट। यहाँ पे हमने क्या कर दिया इसको S2 I1 पे क्या है डॉलर पे एक्सेप्ट, ठीक है। तो I1 के बाद डॉलर पे एक्सेप्ट हो जाएगा। ये वर्ड हमारा स्पेशल केस है, ये हमारा स्पेशल ये हमारा। तो I4 पे हमारा क्या है A to B डॉट 3, तो जहाँ जहाँ A B डॉलर, जब तक क्या आ जाएगा I4 के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा R3 R स्टैंड फॉर रिड्यूस। देन I फाइनल टर्म क्या हमारे पास है I5 है, तो I5 पे कौन सा A डॉट 1 1 है, तो यहाँ आ जाएगा R1 I6 में क्या यूज हुआ है A डॉट, ये 2 है तो R ये मैं यूज किया पास में। तो वन इंटरेस्टिंग थिंग इसमें आप देख रहे हैं आप, तो ये तो ब्लैंक एंट्री, तो ब्लैंक एंट्री क्या शो करती है, एरर। ब्लैंक एंट्री शोस एरर, ये सब क्या है एरर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट LR0 पार्सर। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिया हुआ एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ I0 on S is going to I1, चीजें जो मैंने बताई वही चीजें लिखी हुई है। प्रोडक्शन नंबर 1 2 3 4 कर दिया हमने, 1 2 3 कर दिया, एंड देन सब यहाँ पे रिड्यूस लगा दिया, ठीक है। नाउ वन एग्जांपल करके सॉल्व देखते हैं आप। W इक्वल टू AB है, हम ले लेते हैं स्टैक, स्टैक चाहिए होगा हमको, और ये इनपुट बफर है हमारे पास, ये क्या है हमारा इनपुट बफर, ये स्टैक है। तो सबसे पहले क्या आएगा स्टैक डॉलर है। अब देखिए, अब यहाँ पे चेक करेंगे डॉलर, तो अब पहले हमारे पास क्या है ए, ठीक है, और इनिशियली हमारे पास क्या है 0, तो हम पहले कहाँ पे हैं 0 पे हैं, मतलब 0 स्टेट पे हैं। तो 0 से हमें ए दिखा, तो कहाँ जाएंगे, यहाँ देखिए हम आते हैं 0 पे ए, तो 0 पे ए का मतलब ये हुआ हमारे पास 0 पे ए टेबल में आया तो क्या है S3 पे गए, ठीक है। तो 0 पे ए दिखा तो S3 पे यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक है। देन ये हमारा यहाँ है। नाउ अगेन ए चेक किया हमने, तो फिर अभी हम कहाँ पे 3 पे हैं, तो 3 से ए पे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे देखते हैं, 3 से ए पे गए तो 3 यहाँ पर है हमारा, 3 से ए पे फिर हम S3 पे जा रहे हैं, फिर हम S3 पे आ जाएंगे,
हमारे पास। नाउ बी पे अब आ गए। नाउ 3 से बी पे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे चेक करते हैं। 3 से बी पर S4 पे जा रहे हैं, जो S4 पे आ जाएंगे। सॉरी सर, यहाँ पे 0 से ए भी तो आएगा, कुछ करते जाएंगे। क्या होगा, 0 से थे, ए पे चेक किया, कहाँ पे आ गए, बी पे आ गए। 3 पे थे, ए पे चेक किया, फिर 3 पे आ गए। नाउ 3 पे थे और बी पे चेक किया, कहाँ आ गए, 4 पे आ गए। यस, तो अब 4 पे है एंड देन अगेन बी पे आए। अब 4 से बी पे आए, जैसे 4 से बी पे क्या है हमारे पास, 4 से बी पे हमारे पास है R3। अब देखिए, अब शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, अब रिड्यूस करना पड़ेगा हम। जब रिड्यूस करेंगे तो हम करंट सिंबल रिड्यूस नहीं करेंगे, जस्ट उसके पहले वाला चेक करके रिड्यूस करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम कौन सा रिड्यूस करेंगे, ये बी, तो ये बी रिड्यूस करेंगे। इसका मतलब ये है, तो अब वहाँ क्या था, रिड्यूस क्या था, कौन सा प्रोडक्शन था, 4 में बी पे R3 था। तो R3 का मतलब ये हुआ हमारा R3 बी डॉट, यहाँ क्या आ जाएगा, ये हम उसको रिप्लेस कर देंगे ए से। ये हम हमने A से। अभी हम यहीं पे हैं, अभी हम यहाँ से बढ़े नहीं, क्योंकि हमने बी देखा। तो ए टू बी हमारा R3 था, तो चेक द लेंथ ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन। इसकी लेंथ 1 है, तो हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे टू सिंबल फ्रॉम द स्टैक, तो 2 सिंबल पॉप कर लेंगे। तो एक ये पॉप किया हमने, एक पॉप किया। पॉप करने के बाद क्या किया, इसको हमने ऐसे, ओके, ये यहाँ पुश कर। नाउ ए पे आए, अब यहाँ पे क्या है, फिर बी, तो ये हमारा पास अभी 3 से, अब 3 से क्या, 3 से फिर देखेंगे बी पे देखेंगे, तो 3 से बी पे चेक किया हमने, क्या आया हमारे यहाँ पर, 3 से बी पर, 3 से बी पर हमारा फिर S4 यानी शिफ्ट 4। 4 का मतलब फिर यहाँ पे आए और हमने क्या यूज किया, 3 से ए पे, सॉरी 3 से ए पे जाएंगे, 3 से ए पे चेक करेंगे, नॉट बी तो क्या नहीं, 3 और ए है। तो 3 से ए का मतलब है कि ऊपर पे 3 यहाँ पे है और ए पे क्या है, 6। तो क्या है, तो 3 से ए पे क्या है हमारे पास, 6 है, तो 6 यहाँ आ जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, ठीक। अब चेक करेंगे 6 से बी पर, 6 से बी पर क्या हमारे पास, फिर चेक करते हैं ऊपर आके, 6 से बी पर हमारे पास है, 6 यहाँ पर है, 6 से बी पर फिर R2 है। तो R2 मतलब क्या हुआ हमारा, इस वन, इस प्रोडक्शन, R2 हमारी इस वन, R3 था। R2 का मतलब ये है A2, सॉरी A2, ये हमारा R2, ये हमारा R2। तो क्या करेंगे अब हम, इसमें लेंथ कितनी है, 2 है, 4 सिंबल पॉप कर देंगे। तो 4 मतलब क्या, दिस वन, दिस वन, दिस वन, तो चला जाएगा। तो मतलब ये है कि हम अब करेंगे क्या, यहाँ पर आके 4 सिंबल पॉप, मतलब ये ए और ये एक अब बी पे हमारे पास बी है, अब 3 और बी पे चेक करेंगे, तो हमारे पास ए आया। फिर हम 3 ए पे फिर हमने चेक किया, 3 ए पे हमने चेक किया, 3 से ए पे क्या है, 3 से ए पे फिर 6 है, फिर 6 आ जाएगा यहाँ पर। 3 से ए, नाउ 6 से बी पे चेक करेंगे अगेन, तो 6 से बी पे चेक किया हमने, 6 से बी पर हमारे पास क्या है, 6 से बी पे R2 है। R2 मतलब फिर अगेन ये, फिर हमारे पास कितना, चार सिंबल पॉप होगा, तो 4 सिंबल अगेन हम पॉप करेंगे। तो 1 2 3 4, अब क्या हो जाएगा, ये ए और ए मिलके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ ए आ गया। नाउ अगेन ए से बी पे चेक करेंगे अब हम, नाउ अगेन हम गोइंग ए से बी
तो ए से 0 से 8, 0 से 8 जाएंगे तो आएगा 2 आए, यहाँ क्या लिख देंगे हम 2 लिख। अब नाउ 2 से बी पे चेक करेंगे अगेन, तो 2 से बी पे क्या होगा हमारे पास, बिकॉज हमारे पास अभी सिर्फ बी हमारे पास है, तो 2 से बी पे जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, पे जाएंगे S4 आएगा, तो S4 की मीनिंग क्या हुई हमारे यहाँ पर, देखिए जस्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा बी, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। नाउ 4, अब 4 के बाद क्या है हमारे पास, डॉलर आया। नाउ 4 से डॉलर पे चेक करेंगे, तो I4 से डॉलर पे क्या है, R3 है, R3 मीन्स अगेन दिस वन, ये वाला प्रोडक्शन था हमारे पास, R3 मतलब ये ये हमारा 3 था, तो इसकी लेंथ की टू सिंबल पॉप पॉप कर लेंगे वहां से, तो अगेन यू हैव टू पॉप टू सिंबल, लेट मी जस्ट सी दिस टू सिंबल इज पॉप, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका बी। नाउ अगेन 2 भी चेक करेंगे, 2 भी पे जाएंगे फिर अगेन 2 तो I2 से बी पे जाएंगे तो क्या मिलेगा, S4, फिर S4 आया हमारे पास, तो नाउ अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा ओ, एंड देन अगेन हमें पास क्या है, डॉलर है, तो 4 और डॉलर पे चेक करेंगे फिर हम अगर यहाँ पे 4 और डॉलर, 4 पे डॉलर चेक किया तो क्या आया, 4 से डॉलर चेक किया R3, रिड्यूस R3 मतलब अगेन बी से रिप्लेस कर देंगे इसको हम, तो नाउ दिस बी इज रिप्लेस बाय दिस बी इज रिप्लेस बाय अगेन ए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे है, अब आप चेक करेंगे नेक्स्ट वन, लेट मी गो टू नेक्स्ट पॉइंट, अब B4, नाउ अगेन हमारे पास क्या है, डॉलर है, तो डॉलर से चेक किया 4 और डॉलर, 4 डॉलर क्या हमारे पास, B4 तो चला गया हमारे पास यहाँ से, नाउ अब क्या बचा हमारे पास, 0 और डॉलर बचा, I0 और डॉलर, I0 डॉलर में क्या हो गया, I0 क्या यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से अब ये 0 और इसके हमारे दिस वन लास्ट, ये क्या हो जाएगा हमारे, इस ए और ए और ये ठीक है, यहाँ से ऐसा हो जाएगा, टॉप मतलब पॉप करके यहाँ से इसको पॉप, दिस इज द मीनिंग ऑफ LR 0 item passing. So with the help of passing table you can decide whether the string is accepted or not, and with the help of how we can construct passing table with the help of PFA, PFA कैसे कंप्यूट होगा, LR 0 आइटम को कंप्यूट करने के बाद, क्रिएट करने के बाद, LR 0 आइटम कैसे क्रिएट होता है ये मैंने बताया जब आपको डॉट शुरू करना, दिस इज ऑल अबाउट LR 0 आइटम। ये देखिए हमने यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे एक डिफरेंस अब क्या है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम LR1, LR1 में क्या होगा, LR1 में ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस ओनली इसमें चेंज आएगा, बाकी सब चीज सेम रहेगी, LR 0 आइटम भी सेम रहेगा सब, बस इसमें क्या है, इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल द रिड्यूस मूव इन एवरी कॉलम ऑफ द टर्मिनल सिंबल, हम इसमें ना करके हम निकालेंगे फॉलो ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, तो हम कल बताएंगे कैसे हम करने के, ऐसा नहीं कि हम R3 यहाँ हम तब नहीं रखेंगे, हम निकालेंगे फॉलो ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, जो उसके बाद फॉलो क्या होता है तो हम कल बताएंगे आपको, तो आज हम इतने ही रखते हैं, कल हम पढ़ेंगे LR1 पार्ट, क्या हम अभी बता ही देते हैं आपको, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कैसे होता है, प्रोडक्शन नाम दे दिया हमने, नाउ SLR1, अब देखिए SLR1 क्या होता है, SLR1 रिफर टू सिंपल LR पार्ट सी, इट इज सेम एज LR 0 पार्ट सी, डिफरेंस क्या आएगा वो देख लेते हैं, द ओनली डिफरेंस इज इन पासिंग टेबल, जो बता चुका हूं, to construct SLR1 passing table, canonical collection of LR0 item सेम है वैसे सब करेंगे, in the SLR1 passing we place the reduced move only in the follow of the left hand side, this is the difference, तो मैंने बोल्ड करके लिखा हुआ, तो we place reduced move only in the follow of left hand side, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे जो reduced move लिखा हुआ है यहाँ पे दिस पासिंग टेबल आप देख सकते हैं, reduced move कहाँ आया है, सारे में आया है,
ऑल रोज। अब यहाँ पे सब में नहीं आएगा, कुछ ही चीजों में आएगा। तो वो कैसे करेंगे हम? फॉलो फॉलो निकाल के लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं कैसे होगा वो। सेम ग्रामर हमारे पास है, हमने क्या कंप्यूट किया। अब देखिए यहाँ पे रूल क्या है, ये हमारे पास क्या है, इसका रूल है। क्या देख रहे हैं आप? वही चीज है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर होना चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, आर्गुमेंट प्रोडक्शन एलआर जीरो यहाँ तक सेम, यहाँ भी सेम है। और बस यहाँ पे हम टेबल कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्टिव so the step which used to construct SLR1 table given below, if a state I is going to some other state ij on a terminal, then correspond to a shift move in the action point. जैसे मान लीजिए यहाँ पे I एक स्टेट है and this state is going to ij state on consuming terminal symbol. तो क्या हो जाएगा, एक्शन पार्ट में ij है, यहाँ पे एक जगह sj आ जाएगा जैसा पहले हो रहा था। अब नाउ गो टू मूव में क्या होगा, अगर से वेरिएबल पे जाएगा तो गो टू मूव में चला जाएगा, यहाँ पे गो टू मूव चला गया। मेन चीज है रिड्यूस साइन। if state ij contains final item, it means right dot present at the rightmost side of the right hand side of any production, it's called final item which has no transition to the next state, then the production is known as this production. For all terminal in follow a, write the reduced entry along with the production. follow a निकालें, क्या निकालेंगे हम, follow of e, follow of कैसे करेंगे वो चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल हमने ये वाला लिया था, तो यहाँ पे डॉट ए स्टार है, यहाँ फॉलो ऑफ क्या होगा ये मैं पढ़ा चुका आपको, हाउ टू कंप्यूट फर्स्ट एंड फॉलो, मेरे ख्याल से मैंने लेक्चर 3 में पढ़ाया था। तो फॉलो ऑफ केस क्या होगा, तो अगर से आपको फॉलो और फर्स्ट ऑपरेशन चेक करना है तो लेक्चर 3 का डाल लीजिएगा, वीडियो रिकॉर्डेड पढ़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे देख लीजिएगा एंड देन आप फर्स्ट और फॉलो को डिवाइड कर सकते हैं। तो फॉलो ऑफ क्या होगा, हमेशा डॉलर होता है। अब फॉलो ऑफ ए, तो फॉलो ऑफ ए क्या होगा, फॉलो ऑफ ए। अब देखिए फॉलो ऑफ ए यहाँ पे क्या है, इसके बाद क्या है, ए है, तो क्या आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फॉलो ऑफ ए है, फॉलो तो ए टू अल्फा बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए, अब यहाँ पे अल्फा बीटा डॉट जो है, अल्फा बीटा डॉट क्या हम सब में नहीं रखेंगे, हम किस रखेंगे, ए में रखेंगे। क्यों, क्योंकि फॉलो ऑफ ए क्या है हमारे पास, फॉलो ऑफ ए क्या आया, ए। So this final item alpha beta dot can be put only in A, not P and down. इससे पहले क्या था, LR जीरो में क्या हो रहा था, हम ये फाइनल आइटम सब में रख देते थे, ए में भी बी में भी डालना था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, फॉलो ऑफ ए निकालेंगे। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन LR जीरो एंड SLR1। ये हमारा ग्रामर है। अब यहाँ पे हमने बनाया कैसे, आई नॉट सेम चीज वही फॉलो करते हैं, LR जीरो आइटम कंप्लीट कर क्लोजर निकालेंगे, फोटो निकालेंगे, बनाएंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, DSA, इसको बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फाइनल आइटम क्या क्या हमारे पास है, सो दिस वन इज द फाइनल आइटम हमारे पास कौन कौन सा है, एक तो ये फाइनल आइटम है, एक ये है क्रॉस डॉट एट राइट मोस्ट साइड, ये है, एंड इसमें हमारे पास ये और ओके, तो I1 I4 I7 I8 ये हमारे पास है। नाउ अब यहाँ पे तो I6 तो I7 I8, तो I7 I8 में क्या है हमारे पास, अच्छा दो ही है, तो अब ये हमारा नहीं हो पाएगा, क्यों, तो I1 में क्या है, ये तो हमारा चला जाएगा एक्सेप्ट स्टेट में चला जाएगा, दिस वन गोस टू एक्सेप्ट स्टेट बिकॉज़ इट इज स्टैटिक सिंबल। अब I7 में क्या होगा, तो I7 क्या है, फॉलो ऑफ ई निकालेंगे, तो फॉलो ऑफ ई क्या होगा, जो फॉलो ऑफ ई आएगा वही हम रखेंगे, ठीक है। तो फॉलो ऑफ ई क्या आया देख लीजिए यहाँ पर, तो I7 में फॉलो ऑफ ई कहाँ पे आया है, प्लस में आया है और डॉलर पे आया। I8 में फॉलो ऑफ क्या आया होगा, तो ये सब में आया प्लस और स्टार और डॉलर, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे हम, ठीक है बेटे। I8 में क्या है, फॉलो ऑफ टी, फॉलो ऑफ टी कहाँ कहाँ आया है वहां पर, तो I7 I8 हो गया, ठीक है। I7 एंड I8 एंड I1 एंड I4 में क्या होगा, फॉलो ऑफ फिफ्थ, फॉलो ऑफ कहाँ जाए तो आप आगे,
ये हमारा i4 है और ये i3, i8, i instead of putting all the lines, sorry, all the reduced book in all the columns, you have to put only in the column left hand side. यहाँ देखिए obviously in compared to LR0 item, number of blank entry is more in SLR1 दिखा है आपको, तो इसकी जो एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी होती है वो LR0 से ज्यादा होती है because has more blank entries, so it can detect the error more as compared to LR0. तो जो एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी होती है SLR1 से ज्यादा होती है as compared to SLR1. तो दिस इज ऑल अबाउट SLR1. अब कल पढ़ेंगे हम कल के लेक्चर में LR1 एंड LALR. इसके हम LR1 आइटम पढ़ते हैं कल. थैंक यू सो मच.